Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 6 September 2021, and I am teaching you chapter number 12, locating places. So, student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, I explained you how you will understand the different directions. Okay, how we understand direction in the map also, that thing also I explained you in the previous video. When you see the direction in the map, then the top direction is always direction which is always on the top, that is north. Direction at the bottom is south. Okay, and then right side direction is east, and left side, that is your west. So this I have already explained you in the previous video. When you see the direction in the map, then top direction is always north, bottom is the south, right hand side is the east, and the left hand side is the west. And in the same manner, student, I have already explained you how you will see the direction if your face is towards the sun, and we all know that sun rises in the east, and the direction which is behind the sun, that is your west. North direction to our left hand side, and south to our right. So in this manner, by seeing the sun, we can find out the position of the direction. And there is also a small device to know the direction, that is known as a compass. Okay, compass is a small device by which we are able to find the directions. Now student, we have completed all the topics of the chapter, so we will start discussing keywords of the chapter. First keyword, that is symbol. So what is a symbol? A mark, sign, or a picture which show something in the map. Okay, which show something in the map, dash is known as symbol. For example, when I am explaining you about this chapter, so if you want to note down some important symbols, you can note down in your rough copy. Okay, for example, this symbol, if this type of a symbol you will see on the in the map, अगर आपको मैप में बेटा इस तरह का सिंबल देखने के लिए मिलता है, तो दिस सिंबल स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बाउंड्री. क्योंकि हमारे और भी बहुत नेबरिंग कंट्रीज भी है ना, हमारे कंट्री के अगल बगल नेबरिंग कंट्रीज भी है ना. सो दिस सिंबल विल प्रेजेंट इंटरनेशनल
international boundary. Okay, so this symbol stand for international boundary. Okay, this is the first one. Second one, now if you see this type of a symbol, if you see this type of a symbol, circle is outside, inside the circle there is a star, so student this symbol stand for capitals. ठीक है, आपको पता है हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं, जैसे हम लोग यूपी में रहते हैं. सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूपी स्टूडेंट? तो कैपिटल ऑफ द यूपी इज लखनऊ. सो whenever you see this type of symbol in the map, so this symbol stand for the capital. इसका मतलब वो उस स्टेट की क्या होगी? कैपिटल होगी. Is it clear? That is this is the symbol for the capital. Third one, our symbol is the, if you see these two parallel lines and the color is color inside the line is yellow. ठीक है, व्हाट आर दीज? दीज आर टू पैरेलल लाइंस, एक दूसरे के पैरेलल है. पैरेलल लाइंस बेटा वो होती हैं जो आपस में मिलती नहीं है. ठीक है, जो लाइंस आपस में मिलती नहीं है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं. ठीक है, सो अब मैं तो ब्लैक पेन से पढ़ा रहा हूँ, दैट इज द रीजन मैंने लिख दिया इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में क्या कलर होगा? द कलर इनसाइड द लाइन इज येलो. अगर ये सिंबल आपको मिलता है, ठीक है, ब्लैक लाइंस के बीच में कलर क्या है? बीच में येलो, तो दिस सिंबल स्टैंड फॉर हाईवेज. ये सिंबल किसको बताता है? हाईवेज. दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर हाईवेज. ओके, अगर ब्लैक लाइन के बीच में येलो कलर है तो दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर द हाईवे. ठीक है, नेक्स्ट इज, if you see again you will see two parallel lines. ठीक है, these are two parallel lines. So if this type of a symbol you will see in the map, then this symbol stand for the railways. आपने देखा होगा रेल की ट्रैक, सबने देखी है, ट्रैक ऐसी ही होती है ना रेल की बेटा. आप जस्ट इमेजिन करो, इस बार सिंबल को देखने के बाद एक बार माइंड में रिकैप्चुलेट करो. आप सबने कभी ना कभी आप घूमने गए होंगे, आप सबने रेलवे ट्रैक्स देखी होंगी. सो इफ सच टाइप ऑफ सिंबल यू आर एबल टू सी, अगर ऐसा सिंबल आपने देखा है मैप में, तो आप दिस सिंबल स्टैंड फॉर द रेलवेज. इज इट क्लियर? फिफ्थ सिंबल है अगेन टू पैरेलल लाइंस. ठीक है, कलर inside a line is
ब्लू, ठीक है। यहाँ अगेन दो पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन मीन्स द लाइंस विच नेवर मीट विच इच अदर, ठीक है, जो आपस में मीट नहीं करती है, ठीक है। तो अब अगर फिर आपको ब्लैक लाइंस के बीच में क्या कलर मिलेगा, कलर इनसाइड ए लाइन इज ब्लू, सो दिस सिंबल स्टैंड फॉर रिवर्स। इज इट क्लियर? और जब मैंने आप लोग को मैप के फीचर्स पढ़ाए थे तब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ब्लू कलर अगर मैप में कहीं भी मिलता है तो दिस कलर स्टैंड फॉर द वाटर बॉडीज लाइक रिवर है, सी है, ओशंस है। एंड इफ यू सी द ग्रीन कलर देन इट स्टैंड्स फॉर द फॉरेस्ट। एंड इफ यू सी ब्राउन कलर इन द मैप, डार्क ब्राउन कलर इन द मैप, सो दीज कलर स्टैंड्स फॉर द माउंटेन्स, ठीक है। अगर आपको डार्क ब्राउन कलर देखने को मिल रहा है मैप में तो आज समझ लो कि वो जो पार्ट एरिया जिसको डार्क ब्राउन कलर से दिखा रहा है तो वी आर इन द मैप, वी आर टॉकिंग अबाउट द माउंटेन्स, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन सिंबल थे जो तुम लोग को बताए मैंने। एक और सिंबल देख लो, two parallel lines, again two parallel line, now this time color inside a line is dark okay, color inside a line is dark green, so it stands for the forest, okay, so it stands for the forest, ठीक है, और it stands for the forest, ठीक है। now next is the, so what is the symbol, a mark, a sign or picture that show something, that is known as symbol, ठीक है। a mark, sign or picture that show something, that is known as symbols, and few symbols I have already drawn on the board. These symbols are not given in your book. तो जब आप इनको बनाओगे, मैंने तो इंग्लिश में लिख दिया बिकॉज आई एम टीचिंग विद अ ब्लैक पेन, मेरे पास दूसरे कलर्स नहीं है तो इसलिए मैंने लिख दिया कि कलर इनसाइड लाइन इज ब्लू। तो आप जब ड्रॉ करोगे तो पैरेलल लाइंस ब्लैक से बनाना और इसके अंदर क्या कर लेना, ब्लू कलर कर लेना। इसके अंदर कौन कलर कर लोगे, डार्क ग्रीन कलर कर लोगे, ठीक है। और नॉट, डोंट राइट दिस थिंग्स इन योर क्लास वर्क कॉपी, ये आप कहीं रफ में नोट कर लेना, ठीक है। 6 सितंबर की डेट डाल देना, चैप्टर का नाम डाल देना, लोकेटिंग प्लेसेस, और आप रफ कॉपी में नोट करना। बिकॉज मनी स्टूडेंट व्हाट आई एम टीचिंग ऑन द बोर्ड, मैं जो भी चीज़ें बोर्ड में टीच करता हूँ दे नोट डाउन ऑल द थिंग्स इन द क्लास वर्क कॉपी। दिस इज you will not write these things in your classwork copy, is it clear? You note down these things in your rough copy. In classwork copy we will write a question answer of the chapter and we will draw the diagram, ठीक है। next is the sketch, next is the sketch। so what is sketch? Sketch is a rough drawing, sketch is a rough drawing of a place, okay। so what is a sketch? A sketch is a rough drawing of a place। rough drawing of a place sketch को हमने इसलिए बोला था क्योंकि इट डज नॉट गिव यू एग्जैक्ट मेजरमेंट, ठीक है। ये आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बताती। जैसे आपको कहीं जाना है, जो आपकी डेस्टिनेशन है, जिस प्लेस पे आप जाना चाहते हो, तो अब आप जहाँ पे हो और आपको कहीं दूर जाना है, मान लो आप 39 GTC में हो और आपको लंका जाना है, तो ये आपको डायरेक्शन तो बता देगी, रूट बताने में आपकी हेल्प करेगी, हाउ यू विल गो टू लंका, बट हाउ मच is the exact distance between 39 GTC and Lanka, it will not give you the exact measurement।
ये आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बताएगी कि कितना किलोमीटर आपको डिस्टेंस कवर करना है, तो दैट इज अ स्केच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड जो था दैट इज अ मैप। ओके, a drawing of place, a drawing of place with exact measurement। ठीक है, सो मैप किसी का भी हो सकता है, आपके सिटी का भी हो सकता है, आपके स्टेट का भी हो सकता है, होल कंट्री का भी हो सकता है, होल वर्ल्ड का भी हो सकता है। दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप आप देखते होगे अपने एटलस में। और मैप्स के टाइप्स ऑलरेडी मैंने तुम लोग को, अभी आप लोग को नहीं है, हायर क्लास में आएगी, लेकिन आपके नॉलेज में फिर भी मैंने डाल दी है, बता दिया है कि मैप्स, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैप्स, दैट इज फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप कि विच टाइप ऑफ लैंड इज प्रेजेंट, कहीं पे हिल्स है, कहीं माउंटेन्स हैं, समवेयर यू विल सी डेजर्ट, समवेयर यू विल सी प्लेट्यूज, ओके, वाटर बॉडीज। तो ये डिफरेंट फिजिकल मैप जो है ये फिजिकल वाला आता है। पॉलिटिकल, इंडिया की 28 स्टेट्स हैं, तो विच स्टेट्स, कौन स्टेट कहाँ पे हैं, तो उसका पता आपको किससे चलेगा, पॉलिटिकल मैप से। ठीक है, उससे ये भी पता चल जाएगा कि आपकी स्टेट की किस अदर स्टेट्स के संग क्या है, बाउंड्रीज। और थीमेटिक मैप मैंने बताए थे आपको, थीम बेस्ड मैप, ये किसी भी पार्टिकुलर थीम की फुल डिटेल आपको दे देता है। जैसे हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन इन डिफरेंट स्टेट्स, तो इंडिया की 28 स्टेट है, 28 स्टेट्स में क्या पॉपुलेशन है, ये पूरा आपको कंप्लीट इसमें नॉलेज मिल जाएगी। रेलवेज का थीम मैप बनाना है तो ये पूरा कंप्लीट बता देगा आपको कि इंडिया में कहाँ कहाँ रेलवेज फैसिलिटीज हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में इस तरह है, तो ये पूरा, फॉर एग्जांपल क्रॉप्स का मैप बनाना है कि फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न प्लेन्स में व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन इन नॉर्दर्न प्लेन्स, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो जो क्रॉप्स हैं सब। थीम बेस्ड मैप मतलब जो भी हम थीम लेते हैं उसका फुल एक्सप्लेनेशन, फुल डिटेल आपको दे देता है। ठीक है, तो मैप क्या है, ए मैप, ए ड्राइंग ऑफ प्लेस विद एग्जैक्ट मेजरमेंट। एग्जैक्ट मेजरमेंट की बात हम मैप में क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि मैप किस पे बनते हैं, स्केल्स पे बनते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। अब मान लो मैप में दो सिटीज के नाम दिए, तो आप मैप तो बहुत स्मॉल इन साइज होता है। ठीक है, अब वाराणसी इतना बड़ा शहर है, तो इतना बड़ा पेज हम कहाँ से लाएंगे मैप बनाने के लिए, तो इसलिए स्मॉल मैप कैसे बनते हैं, स्केल से। किससे बनते हैं, ड्यू टू द हेल्प ऑफ ए स्केल। और सब मैप के अपने अपने स्केल होते हैं। जैसे मैंने मैप बनाया और हमने इस मैप में लिख दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। मान लो मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, हम स्केल लेंगे अपने ज्योमेट्री बॉक्स का, मेजर करेंगे, मान लो ये दूरी 1 सेंटीमीटर निकली, तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। आ रही बात समझ में? ठीक है, इज इट क्लियर? तो इस तरह सारे मैप्स के अपने क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। दैट इज द रीजन मैप गिव यू द एग्जैक्ट मेजरमेंट। और आप प्रेजेंट टाइप में बात करो तो ये और इजी हो गया है, क्योंकि गूगल मैप्स आपके मोबाइल फोन पे कहीं भी आपको जाना है, आप अपना करंट लोकेशन डालो, आपको जहाँ जाना है उस डेस्टिनेशन को डालो, जिस प्लेस पे आपको जाना है, तो वो तुरंत आपको पूरा मैप बन के आ जाएगा कि आपको यहाँ से वहाँ जाना है। वो तो इतना डिटेल में आता है कि क्या पूछो। अगर आप बस से जाओगे तो बताएगा आपको कितना टाइम लगेगा, अगर अपनी पर्सनल व्हीकल से जाओगे तो कितना टाइम लगेगा। और वहाँ जाने के लिए हेल्पफुल क्या होते हैं, वही जो मैंने आप लोगों को बताया था, लैंडमार्क्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं जिसको मैक्सिमम लोग जानते हैं। और यहाँ से अगर आपको कहीं जाना है
तो रास्ते में कौन कौन लैंडमार्क्स आएंगे उसकी वो आपको डिटेल नॉलेज दे देगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।